Hello students, I welcome you all to the third part of chapter 3, that is globalization. Now let's begin with a thought. This morning you woke up and put on a shirt that says made in China on the inside tag. You then went to your garage and got in a car that had parts that were manufactured in all parts of the world. You drove that car to the grocery store where you bought apples that were grown in UK, coffee from Brazil and curry from India. You did all of this because of globalization. Humans have moved into a phase where everything is accessible without any difficulty. Say, for example, you want to buy one t shirt from an online site managed by an international brand. But for some reason, online shopping for international brands is banned in your country. Now, this will make you feel angry or irritated, right? So, the world wasn't always open to free trade or cross border investments. It was around 2 to 3 decades ago when the concept of globalization was spread far and wide. This allowed nations to carry out trade and other activities in a systematic manner, right? Now imagine a small village market where all are free to come and sell their products at whatever price they desire. There are no limitations on control of their products or the prices. Now this is a globalized trade. So globalization basically refers to free interaction among all the countries of the world in various fields like trade, technology, loans, investments, outsourcing, etc. जब सारी कंट्रीज आपस में फ्री इंटरैक्शन करती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, लेबर इधर से उधर जा रही है, ट्रेड बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, जब कंट्रीज आपस में बहुत ज़बरदस्त इंटीग्रेटेड हो जाती हैं और फ्रीली ट्रेड करती हैं आपस में, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन एम्स एट टर्निंग द वर्ल्ड इनटू अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. अब इतना ज़बरदस्त ग्लोबलाइजेशन, इतना ज़बरदस्त ट्रेड हो गया है कि अब कोई आपस में कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर्स रही ही नहीं. ये एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बन गया है, राइट? नाउ globalization is not a new concept. Traders traveled vast distances in ancient times to buy commodities that were rare and expensive for sale in their homelands. So the Industrial Revolution brought advances in transportation and communication in the 19th century that eased trade across borders. Now, when we talk about globalization and the Indian economy, one name strikes our mind, that is Dr. Manmohan Singh. He was the finance minister in the 1990s when globalization was fully implemented and experienced in India. And at that time, our Prime Minister was P.V. Narasimha Rao. Now, Dr. Manmohan Singh was the front man who framed these economic reforms. Since then, the nation has gradually moved ahead to become one of the supreme economic leaders in the world. Now let's understand one by one that what policy strategies did government adopted so as to promote globalization in the Indian economy. The first one is the rise in equity limit participation of foreign investment. Let us first understand that what is foreign investment. Foreign investment involves capital flows from one country to another, granting the foreign investors extensive ओनरशिप स्टेक्स इन डोमेस्टिक कंपनीज एंड एसेट्स. सोचने वाली बात है, अगर फॉरेनर्स हमारी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपना होल्ड भी रखेंगे मैनेजमेंट में. उनका पूरा हक होगा ये जानने का कि ये कंपनी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है, क्या कंपनी को करना चाहिए सो दैट प्रॉफिट्स आए. नाउ अर्लियर गवर्नमेंट सेड दैट आउट ऑफ 100 शेयर्स सपोज यू कैन परचेज ओनली 40 शेयर्स, एज इन फॉरनर्स कैन ओनली हैव 40% शेयर इन आवर कंपनीज. बट देन गवर्नमेंट इंक्रीज दिस लिमिट टू 51%. इससे क्या बेनिफिट हुआ? पहले फॉरनर्स हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे बिकॉज वो खाली 40% ही इन्वेस्ट कर सकते थे. इन अ सेंस अगर वो इन्वेस्ट करते भी तो वो अपने हिसाब से बिजनेस नहीं चला सकते थे क्योंकि उनका शेयर इस कंपनी में कम था, तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी इंडिया की कंपनी में कम थी. कहने का मतलब वो अपने हिसाब से कंपनी को नहीं चला पा रहे थे ताकि प्रॉफिट्स हो. बट जब गवर्नमेंट ने इंक्रीज की ये लिमिट, दैट इज 51%, तब फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा कि हाँ अब हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि अब हमारी कंपनी के डिसीजंस पे होल्ड होगा,
हम अपने हिसाब से इंडिया की कंपनी को चला सकते हैं। अब डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में होगी, तो अब वो हमारी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। नाउ फॉरेनर्स विल हैव एन एक्टिव रोल इन मैनेजमेंट एज देयर इक्विटी स्टेक और इन्वेस्टमेंट इज लार्ज इनफ टू इन्फ्लुएंस देयर बिजनेस स्ट्रैटेजी। Hence, foreign investors will start investing in India. The next point is reduction in tariffs. Now, earlier taxes were very high if somebody wanted to import in our country. Now, this discouraged outsiders to import in India. Now, this policy changed. We reduce our tariffs on imports so that they could now import their products in the Indian market easily. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले अगर सपोज किसी को गुड इंपोर्ट करने हैं तो उसको अगर पहले गवर्नमेंट को ₹30 एज टैक्स देना पड़ता था, अब उसको वही सेम गुड्स इंपोर्ट करने के लिए उसको ₹10 ही टैक्स देना पड़ रहा है, तो टैक्स उसका कम हो गया। तो इससे वो और मोटिवेट होगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में लाए। जब प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे तो और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और इंटरनेशनल ट्रेड और फैसिलिटेट होगा, राइट? The third point is removal of quantitative restrictions. Now, we removed almost all the restrictions on foreign trade. Earlier, we talked about quota system in which government said that, okay, only this much percentage of goods are allowed in the country and not more than that. Now, this was done to protect our domestic manufacturers. But policymakers realized that we have given enough protection to these domestic producers and it's time for us to open up our economy. So earlier, if only 10% of quota was allowed, say only for essential commodities which were imported, but now they raised this quota to say 30%, where in addition to these essential commodities, other types of goods could also be imported क्योंकि कोटा बढ़ गया। तो अब पहले तो मैं essential commodities ही import कर सकती थी, बट क्योंकि अब हमने कोटा की लिमिट बढ़ा दी, अब essential commodities के साथ साथ मैं कुछ और miscellaneous products भी बाहर से import कर सकती हूँ। So in short, open competition was encouraged, right? Now the next point is partial convertibility of Indian rupee. Until the early 1990s, that is the pre-reform period, anyone willing to transact in a foreign currency would need permission from RBI, the Reserve Bank of India, regardless of the purpose. कहने का मतलब हुआ कि पहले ड्यूरिंग प्री-रिफॉर्म पीरियड अगर मुझे कोई भी करेंसी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करनी है, से अगर मुझे डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करवाना है तो मुझे पहले आरबीआई से परमिशन मांगनी पड़ती थी। तो सपोज़ करो कि मुझे बाहर यूरो ट्रिप पे जाना है, तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, या फिर बाहर पढ़ने जाना है, या फिर बाहर की कंट्री से कुछ ख़रीदना है, इन सब ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। अब अगर मुझे अपने इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना है तो मुझे पहले आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी कि सर ये रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने रुपी को कन्वर्ट करवा रही हूँ। और जो भी उस टाइम पे एक्सचेंज रेट होता था वो आरबीआई ही फिक्स करती थी कि ठीक है, आपको ₹50 में $1 मिलेगा या ₹60 में €1 मिलेगा। ये सब रेट पहले आरबीआई ही डिसाइड करती थी, बट आफ्टर द रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ये सब चेंज कर दिया गया। अब कोई भी कन्वर्जन के लिए आरबीआई की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। प्लस अब एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया था, यानी कि आरबीआई अब बीच में इंटरफेयर नहीं करेगी एक्सचेंज रेट को फिक्स करने के लिए। बट हाँ, अगर एक्सचेंज रेट कुछ ज़्यादा ही अप या फिर कुछ ज़्यादा ही डाउन हो जाए, अगर उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही नीचे या रुपये की वैल्यू ज़्यादा नीचे या रुपये की वैल्यू ज़्यादा ऊपर हो जाए, तो एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने के लिए बीच में आरबीआई आ सकता है। तो इस रिफॉर्म की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होने लगे, सिंस अब रेट जो एक्सचेंज रेट है अब मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही थी, ना कि गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट करती तो सिर्फ गवर्नमेंट अपनी कंट्री का फ़ायदा देखती, ना कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का। बट जब इन्वेस्टर्स ने देखा कि अब मार्केट फोर्सेस पे ही होगा, तो इन्वेस्टर्स फिर धीरे धीरे इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गए, राइट? Now the next point is modification in technology agreements. So we all know that earlier during the pre-reform period we were not allowed to import any foreign technology, right? But because of the globalization we were now allowed
टू इम्पोर्ट फॉरेन टेक्नोलॉजी. अगर फॉरेन टेक्नोलॉजी अंदर आएगी तो हम लोग भी कुछ नया सीखेंगे और हम लोग भी अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना पाएंगे, राइट. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर and talk about outsourcing. Now, this is a very important concept. Outsourcing basically means sourcing from out, right? Meaning getting your work done from someone else. So, getting something done from external sources rather than doing it within the organization is what we define as outsourcing. Suppose एक बड़ी कंपनी है जिसमें तमाम किस्म के काम होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल उसको डेटा एंट्री करनी होती है, एडिटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ डेटा करनी होती है, रिपोर्ट्स बनानी होती है. बट अगर ये कंपनी इन्हें छोटे एंड कैजुअल काम में, इसी छोटे और कैजुअल काम में लग जाएगी तो बड़े काम कैसे करेगी. तो ये बड़ी कंपनीज़ ये छोटे और कैजुअल वर्क किसी दूसरी छोटी कंपनी से करवाती है जो इस काम में स्पेशलाइज करती हो. इससे इन कंपनीज़ का टाइम भी बचता है एंड ऑन द अदर हैंड स्मॉल कंपनीज़ को भी प्रोसीड करने के लिए प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं. तो दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होता है. एंड ऊपर से अगर बड़ी कंपनी ये काम अगर दूसरी छोटी कंपनी को देती है तो उनकी कॉस्ट कटिंग भी होती है, बिकॉज दीज स्मॉल कंपनीज आर स्पेशलाइजिंग इन दीज टाइप्स ऑफ वर्क ओनली, सो दे वोंट बी नीडिंग एनी एक्स्ट्रा efforts to do this kind of work, right? So this is known as outsourcing. So when a company hires regular services from external sources which were previously done internally, जब मैं अपना काम दूसरों से करवाती हूँ, that is known as outsourcing. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. I'll give you one real life example. If I talk about WhatsApp, so in 2012 WhatsApp was a small firm with only 30 full-time and 5 part-time employees. Since then WhatsApp has grown to one of the most popular chat apps in the world. But WhatsApp didn't experience this growth by relying only on their 35% team, right? So to keep their operation costs down, they actually outsourced their development to developers in Russia. So WhatsApp hired offshore developers from Russia because there were excellent engineers there. So most of the in-house employees were focused on customer support and operations, right? Now, we all know that India is a highly populated country, right? Now we have a huge manpower. If I compare this to US, they don't have that much labor force. They are capital intensive country and we are a labor intensive country. Since labor is scarce in US, the demand for labor is very high and hence the workers there demand higher wages. But in India we have abundant labor. Anyone is willing to work even at a lower wage, as they are being afraid of unemployment. अगर आपने सपोजिटली कोई एम्प्लॉयर आया और उसने आपको एक वेज दिया कि ठीक है आप इस पे काम करो, तो वो काम करेगा, वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है. अगर मैंने मना कर दिया तो ये एम्प्लॉयर किसी और को ले लेगा, राइट? So US companies take advantage of this situation. They outsource their business in India. For example, if I talk about call centers, right? Call centers. So they set up their call centers here in India and they use our labor force. So they benefit from such outsourcing since here skilled workers are available at a lower wage rate. So we have two important benefits. Like India has become a favorite destination for global outsourcing because of two major reasons. One is that we are available to work at lower wage rates, and also we have availability of skilled manpower, right? So they benefit from such outsourcing since here skilled workers are available at a low wage, and we also benefit from it since we get employment, right? So it is a win-win situation on both sides. So here India is considered as a favorite destination of global outsourcing, right? So now let's proceed further and talk about WTO. This is a very important concept and usually it comes in exam, right? So WTO को समझने के लिए पहले थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं कि हुआ क्या था कि WTO इस्टेब्लिश हुआ. तो जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930s का, तो बहुत सारी कंट्रीज़ डर गई थी.
पहले जो इंटरनेशनल ट्रेड हल्का फुल्का जो होता था वो भी डर के मारे कंट्रीज़ ने बंद कर दिया था, राइट क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हुआ था ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। तो सारी कंट्रीज़ डर के मारे सब ने अपनी अपनी इकोनॉमी को कुछ हद तक क्लोज्ड इकोनॉमी बना लिया, कुछ इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कर लिए, ऑलराइट। बट 1947 में यूएस ने ये पहल करी कि ठीक है अब ये ग्रेट डिप्रेशन का टाइम ख़त्म हो गया है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर इंटरनेशनल ट्रेड अगेन। तो यूएस ने ये पहल करी और उसने एक एग्रीमेंट साइन कराया जिसको बोलते हैं गैट, विच इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड tariff. This came into force in the year 1948 with 23 countries as the member. Alright, तो 23 कंट्री से एग्रीमेंट साइन कराया गया इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। उन्होंने बोला कि ठीक है अब ग्रेट डिप्रेशन चला गया, नाउ लेट्स फॉर्म अ यूनियन जिसमें 23 कंट्रीज आई थी और जिसमें बोला था कि चलो अब ट्रेड को अच्छे तरीके से दोबारा से नए सिले से अच्छे विद रूल्स एंड रेगुलेशंस शुरू करते हैं। तो इस तरीके से बना गैट। इंडिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ गैट, राइट। अब क्या हुआ कि गैट ने कुछ चीज़ें बोली कि ठीक है हर कंट्री को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ट्रेडिंग पर्पसेस के उसके, कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपस में तो ऐसा नहीं हो कि आप एक ही कंट्री को फेवर कर रहे हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सारी कंट्रीज़ को, राइट। तो अब जो गैट था वो उसके मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे, मतलब कंट्रीज़ आपस में बैठ के बातें किया करती थी, ट्रेड से रिलेटेड बातें किया करती थी। तो ऐसे कुछ 8 राउंड्स हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इन 1947। मतलब ये कुछ मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस थी जो मेंबर कंट्रीज़ आपस में बैठ के डिस्कस करती थी कि ठीक है इसके साथ में ये ट्रेडिंग चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। ऑब्वियसली इफ़ यू फॉर्मिंग वन एग्रीमेंट और अगर आपने कोई काउंसिल बनाई है तो ऑब्वियसली आपको मिलना पड़ेगा। तो ये लोग साल 2 साल में ये कॉन्फ्रेंसेस रखते थे और आपस में सारी कंट्रीज़ डिस्कस करती थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस प्रकार से कुछ 8 राउंड्स रखे गए थे गैट के। एक जैसे जेनेवा में था, एक फ्रांस में 1949 में रखा गया, फिर यूके में 1950 में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सब ने बैठ के बातें करी, फिर जेनेवा में इसी तरीके से 1956 में बातें हुई। सिमिलरली ऐसे 8 राउंड्स हुए, बट जो लास्ट राउंड था 8th राउंड था उसमें कुछ ज़्यादा ही कंट्रीज़ के बीच में डिफरेंसेस आने लगे कोई ना कोई बात को लेके। सो मेंबर नेशंस में आपस में बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगे, विच इज़ वाई इन्होंने एक प्रपोज़ल सामने रखा कि अब हमको एक ऑफिशियली एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। तब इन्होंने गेट को रिप्लेस करके WTO बनाया, alright, WTO, which is World Trade Organization, and it was actually it was constituted on January 1, 1995, and this organization took place of GATE, right. Now, contrary to temporary GATE, WTO is a permanent organization which was approved by participatory countries. तो अब WTO को एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया और इसको इंटरनेशनल स्टेटस दिया गया, जस्ट लाइक IMF एंड IBRD और वर्ल्ड बैंक, राइट। तो ये थी इसकी पूरी कहानी, राइट। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फॉर एग्जांपल गिव अस द फुल फॉर्म ऑफ गैट, राइट। When was GATT established? It was established in 1948. How many countries were there? 23 countries were there. What is the full form of WTO? When was it founded? Right? So these are the kind of questions which may come in your exam. The next question is, the next part is rules and functions of WTO. अब WTO के क्या क्या काम है? एक तो ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, वी ऑल नो दैट। फिर ये ट्रेड को प्रमोट करता है बाय रिमूविंग ऑल टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। बेसिकली ये इंटरनेशनल ट्रेड को और भी ज़्यादा प्रमोट करता है। ट्रेड कैसे प्रमोट होगा? जब ऑब्वियसली आप अपनी कंट्री के जितने भी टैक्सेस हैं वो थोड़े कम करेंगे, राइट। इट एक्ट्स एज अ वॉच डॉग इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये देखता है कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही बिटवीन कंट्रीज़ में, राइट। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही मेंबर कंट्रीज़ के बीच में, राइट।
it provides platform for negotiations among its members. Supposedly किसी कंट्री ने किसी और कंट्री के खिलाफ कोई कंप्लेन कर दी कि ये कंट्री मेरी कंट्री में डंप कर रही है अपना सारा सामान, तो ऐसे तमाम कुछ कोई प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं आपस की नेशंस में इन रिगार्ड टू ट्रेड, तो वो कौन हैंडल करता है? WTO हैंडल करता है, राइट? सो पूछ सकते हैं 3 to 4 मार्कर में कि बताओ रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ WTO क्या है. 1 मार्कर क्वेश्चंस बहुत सारे आ सकते हैं इसमें से, राइट? नाउ लेट्स quickly go through some quick facts. One is that the headquarter of WTO is in Geneva, Switzerland. Number 1. Number 2 is that presently there are 164 member countries in WTO, and the last country to join this organization was Afghanistan. And lastly, the Director General of WTO is Roberto Azevedo, and he is from Brazil, right? Now let's proceed further. Now, globalization in India has increased the competitiveness in business. After adopting the LPG model, which is liberalization, privatization, and globalization of the economy, India's economy has witnessed rapid growth. So, let's know about the benefits of globalization in India. So first let's talk about the positive impact. The first one is the transfer of technology. So because of globalization, Indian companies get advanced technologies from the developed countries and led to higher productivity, which means a higher rate of industrial growth. So we can consider the MNCs, the multinational companies, as carriers of technology from the developed countries to the developing countries, right? The second point is rise in employment. Now India offers a cheap labor. So many companies from developed countries have started to outsource their work to India. Now it has resulted in rise in employment, right? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया हमेशा से फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर मिलती है. तो ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज यहाँ आके सेटअप करती हैं और हमारे लोगों को एम्प्लॉय करती है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. नेक्स्ट इज एबिलिटी टू टैप इनटू अ वाइडर टैलेंट पूल. Now, when fully taking advantage of globalization, you are no longer restrained by talent that is available in your city. Today, your global workforce could work from anywhere in the world with an internet connectivity. And so, basically, what we are trying to say here is that suppose I want a talented person, right, for my company in a specific field. Say for example I need a developer, you know. So ज़रूरी नहीं है कि वो developer मुझे या कोई engineer मुझे मैं इंडिया से ही ढूंढूंगी, right? अब मेरे पास एक global world है, मैं किसी भी country से वो एक engineer को hire कर सकती हूँ या developer को hire कर सकती हूँ, right? अब वो एक जगह पे limited नहीं रह गया. वो टैलेंट मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं इंडिया से ही लूँ, वो टैलेंट मुझे कहीं और से भी मिल सकता है, राइट? बिकॉज वी हैव ओपन अप आवर इकोनॉमीज, राइट? The next point is larger markets. Now globalization opens up new opportunities for businesses to sell their goods and services to much larger markets. Alright, which means more potential sales and greater profits. ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने अपने दरवाजे खोल दिए हैं ट्रेडिंग के, तो मेरी मार्केट भी बहुत बढ़ जाएगी. मैं अपनी डोमेस्टिक मार्केट को तो फुलफ़िल करूँगी ही, साथ ही में मैं बाहर की कंट्रीज़ की मार्केट को भी कैप्चर कर सकती हूँ अगर मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मेरी क्वालिटी अच्छी है प्रोडक्ट्स की, या मेरा प्राइस भी कॉम्पिटिटिव है, अच्छा है, राइट? तो मेरी ऑब्वियसली बात है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से मेरी मार्केट्स भी और बढ़ जाती हैं, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो वी हैव सीन दैट अगर राइज इन एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजेशन लेकर आ रहा है, विच मीन्स उनकी सैलरी भी बढ़ेगी, राइट? इफ़ आई एम गेटिंग एम्प्लॉयमेंट तो मुझे सैलरी मिलेगी तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बढ़ती जाएगी. द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन. Now, globalization has made it easy for those who want to move across the border to acquire better education. Now, people from underdeveloped countries have started to move to developed countries to get a better education. सब थोड़ा बाहर जाने की कोशिश करते हैं, एडवांस कोर्सेज सीखने की कोशिश करते हैं, right? So this migration for education opens new doors for integration of cultures also. अब अगर supposedly मैं बाहर
पीएचडी करने जा रही हूँ तो मुझे बाहर और तरह के लोग मिलेंगे, कोई चाइना से आया होगा, कोई कोरिया से आया होगा, तो वो कल्चरल इंटीग्रेशन भी होगा, राइट? Now, after discussing the advantages of globalization, if you find it as a great thing that happened on earth for the betterment of human, then you should actually turn the coin and also know about its disadvantages, right? So the first point is economic disparities among nation. अब ऐसा भी पॉसिबल है कि डेवलप कंट्रीज़ अपना सारा प्रोडक्ट, अपने सारे जितने भी अच्छे अच्छे अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए और फिर सारे प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्री की मार्केट में दे दें. इससे क्या होगा कि वो तो कंट्री डेवलप होती रहेगी, बट जो हमारी इकोनॉमी है, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएंगे और हम उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ करते रहेंगे और हमारी खुद की कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राइट? सो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ स्ट्रैटेजी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ to expand their markets in other countries, especially developing countries, and this has actually widened the economic disparities among nations and people. And इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिचर नेशंस हैं वो और रिचर होती जाती हैं और जो पुअर हैं वो और ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हो जाती हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ globalization actually has created many new opportunities in terms of job and business, but on the other hand it has also become a big reason for unemployment. So when a country outsources its services, then it actually takes the opportunity from its citizen and gives it to other countries people to earn more benefit. एंड द सेम इज़ हैपनिंग नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब जैसे हम यूएस की बात कर रहे थे, तो अगर यूएस आउटसोर्स कर रही है इंडिया में, तो वो हमारे लेबरर्स को यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन उनकी इकोनॉमी में उनके जो सिटीजन्स हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर रही, तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के चांसेस हो सकते हैं, राइट? क्योंकि हम बाहर से उनकी सर्विसेज ले रहे हैं लेकिन खुद के सिटीजन्स को एम्प्लॉय नहीं कर रहे, हम बाहर से आउटसोर्स कर रहे हैं, राइट? दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न. द सेकेंड रीज़न कुड बी दैट अगर मैं इंडिया की बात करूँ नाउ, सिंस मशीन में चीप प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, तो वो तो एकदम से डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, यू नो, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट बाइंग दैट मशीन मेड चीप प्रोडक्ट्स. तो उनका क्या होगा, राइट? तो तब अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है. द नेक्स्ट पॉइंट इज डोमिनेंट ग्लोबल ब्रांड्स. नाउ इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द कॉम्पिटिशन हैज़ रीच्ड इट्स पीक, and in such a competitive environment it becomes difficult for small industries to survive. So the dominant global brands don't let the small industries to grow. उनको grow ही नहीं करने देते. बड़े बड़े जो brands हैं small industries को बिल्कुल grow नहीं करने देते, and जिसकी वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब बहुत एडवर्सली इम्पैक्टेड हैं, राइट? Now the next point is spread of disease, for example COVID-19, as we have seen now since we are a globalized world, ठीक है? अब चाइना के वुहान से अगर COVID-19 आया तो वो वहाँ नहीं रुका. अब क्योंकि हम इतने ज़्यादा कितनी ज़्यादा इकोनॉमीज़ आपस में इंटीग्रेट हो चुकी हैं, तो वहाँ से वुहान से शुरू हो के पूरे वर्ल्ड में अब फैल गया. क्यों? बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. वी आर अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड नाउ, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. तो एक डिजीज़ जो वुहान में हुई अब वो पूरे वर्ल्ड में फैलती जा रही है, राइट? सो इन द एंड आई वुड से दैट इंडिया इज़ अ कंट्री दैट बिलीव्स इन वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव कुटुंबकम, दिस इज़ अ संस्कृत फ्रेज विच मीन्स दैट we all are one family. So the whole world is one and pura world is one family. So we all are one family, right? So India is a country that believes in Vasudhaiv Kutumbakam, that is the world is one family, and globalization is a live example of this. Now India has reaped many benefits through globalization, and Indian economy has gained stability and trust due to globalization, and now it is being recognized as a strong economic power of the world. But we need to keep an eye on its disadvantages as well while enjoying its benefits, right? Now let's proceed further. Now we've
all done. We've discussed the policies of liberalization, privatization, and globalization. Now let's just assess these policies and see what are the merits and demerits, right? So first I'll come to the merits. The first point is increase in growth rate of the country. अब हमको पता है कि हमने क्या किया था, हमने पब्लिक सेक्टर, हमने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी थी, तो जितना भी पब्लिक सेक्टर के शेयर्स थे हमने वो प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया था. अब हमें पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर मोर प्रोडक्टिव, दे आर डिसिप्लिन लेबर फोर्स. तो प्राइवेटाइज करने की वजह से हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एक बहुत बड़ा बूम मिला. The next point is structural changes. We all know that as an economy grows from developing to a developed country, right? तो जैसे जैसे हम grow करते रहते हैं, जो कंट्रीब्यूशन होता है टूवर्ड्स जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वो धीरे धीरे कम होने लगता है और इंडस्ट्री और सर्विसेज का शेयर टूवर्ड्स जीडीपी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है. तो वो हमको धीरे धीरे दिख रहा था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं. सो अर्लियर वी वर नोन एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, खैर अभी भी बोला जाता है, बट जिस हिसाब से पहले कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से आता था अब उस हिसाब से नहीं आता. मोस्टली इंडस्ट्री और सर्विसेज का मेजर पोर्शन है towards contribution of GDP. The next point is increase in FDI and foreign exchange reserves. अब धीरे धीरे हमारी कंट्री में LPG रिफॉर्म्स की वजह से बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और FDIs आने लग गए जो पहले बिल्कुल नहीं आ पा रहे थे, और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बिल्कुल ख़त्म हो गए थे. लेकिन अब LPG पॉलिसीज़ की वजह से पॉजिटिव चेंजेस आए और FDI फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आए. एक और रीज़न भी था जो हमने अभी पहले पॉइंट में डिस्कस किया था ग्लोबलाइजेशन के, कि गवर्नमेंट ने वो इक्विटी जो जितना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसका लिमिट बढ़ा दिया था फ्रॉम 40% to 51%, जिसकी वजह से फॉरेनर्स और अट्रैक्ट हुए इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन आवर इकोनॉमी. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. वी प्रमोटेड मोर एंड मोर एक्सपोर्ट्स. जैसे तुमको याद होगा लिबरलाइजेशन में वी स्टडीड दैट वी एक्चुअली रिमूव्ड एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, राइट. एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ अगर हम रिवाइज करें, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वो होती हैं कि अगर आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट. तो अब वो चीज़ हटा दी गई. अब आप आराम से बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं. अब आपको उसके लिए टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है. एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ इसीलिए रखी गई थी ताकि आप पहले अपने डोमेस्टिक मार्केट को सेटिस्फाई करो, बाहर एक्सपोर्ट अभी मत करो, क्लोज्ड इकोनॉमी रखो. बट अब वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई थी. नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन फिस्कल डेफिसिट. जैसे हमें पहले देखा था कि पहले हमारा फिस्कल डेफिसिट वॉज वेरी हाई, राइट. फिस्कल डेफिसिट इज व्हेन आवर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, राइट. तो पहले बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट हो गया था, विच इज़ वाई वी वेंट फॉर दीज LPG रिफॉर्म्स. बट अब हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहा था क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स और भी ज़्यादा हमारी कंट्री में आने लगे. तो उनको कुछ टैक्स तो देना ही पड़ता है गवर्नमेंट को. इन ऑर्डर टू रन योर बिजनेस इन अ कंट्री यू हैव टू पे अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो इसीलिए क्योंकि सिंस बहुत सारी MNCs आने लगी, बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने लगे, तो उनको टैक्स भी जैसे प्रॉफिट टैक्स होता है वो सब उनको गवर्नमेंट को देना पड़ा. तो धीरे करके गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू था वो भी बढ़ने लग गया, राइट. देन रिडक्शन इन डेफिसिट ऑफ BOP. डेफिसिट हमने बोला था, डेफिसिट इन BOP तब होता है व्हेन आउटवर्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर दैन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट. जब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं. बट हमको दिख रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, विच इज़ वाई हमारा BOP में भी डेफिसिट धीरे धीरे कम होने लग गया था. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन. अब क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने लग गया था, तो हमारी सप्लाई ज़्यादा बढ़ने लग गई थी एज़ कम्पेयर टू इट्स डिमांड. तो बट नेचुरल है प्राइस लेवल को नीचे आना ही था, राइट. उसके बाद हमने बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खोल लिए थे जिसकी वजह से हम इजीली लोन ले सकते थे. अगर मैं इजीली लोन ले सकती हूँ तो बिजनेसमैन जो है और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में, उससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, राइट. नाउ सो दीज वर सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ LPG. अगर हमें इसको याद करना है तो इसका एक एक्रोनियम है विच इज़ बेग FDIs. FDI के लिए बेग करो. सो B स्टैंड्स फॉर your BOP, reduction in BOP. E stands for exports कि हमने exports को promote किया. G stands for growth rate बढ़ गया. F stands for foreign direct investment बढ़ गया. D stands for हमारा fiscal deficit कम हो गया. I stands for
हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, एंड एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन मेमोराइज दिस. नाउ द सेकेंड साइड ऑफ द कॉइन इज डीमेरिट्स. नाउ कुछ प्रॉब्लम्स भी थी एलपीजी की वजह से, वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहला आता है जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ तो हो रही है बट उस हिसाब से जॉब्स नहीं हो पा रही. नहीं तो जनरली देखा जाता है कि जब ग्रोथ होती है तो जॉब्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है इकोनॉमी में, बट इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा था. जॉब मतलब ग्रोथ तो हो रही थी इंडियन इकोनॉमी में जो हम यहाँ देख रहे हैं, बट जॉब्स उस हिसाब से क्रिएट नहीं हो पा रही थी. तो क्योंकि एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि हम अब प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो रहे थे, तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. दूसरी चीज़, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने आप को मॉडर्नाइज करता रहता है, नई नई मशीन्स लेकर आता है, तो मशीन्स भी लेबर को रिप्लेस कर रहे थे, राइट. और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे वर्कर्स को अपना रिड्यूस कर रहा था. वाई? बिकॉज ऑफ द लो परफॉर्मेंस. पीएसयूज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो धीरे धीरे उनको वर्कर्स को निकालना पड़ा, और ओवर स्टाफिंग भी होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं थी. तो इसलिए धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया था. एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर. हमने बाकी सारे सेक्टर्स में तो बहुत काम किया, बट एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने थोड़ा निगलेक्ट कर दिया, राइट. तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डीमेरिट है कि हम इंडस्ट्रीज़ पे फोकस कर रहे हैं, हम सर्विसेज पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई रिफॉर्म्स ही नहीं डाले इन एलपीजी रिफॉर्म्स, राइट. द थर्ड पॉइंट इज़ लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अब क्या हुआ कि अब क्योंकि हमने सारे इम्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शंस, जितने भी कोटा सिस्टम था, ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, उनको हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था. तो बाहर से चीप प्रोडक्ट्स आते थे. अब क्योंकि चीप प्रोडक्ट्स अंदर आ रहे हैं तो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एकदम ख़त्म हो जाती है, राइट. सो वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज चीप प्रोडक्ट्स. तो इससे क्या होता है, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बहुत सफ़र किया क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स कोई ज़्यादा खरीद नहीं रहा था, राइट. एंड ऑल्सो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी, फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई, वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट. The next point is disinvestment. Now, the disinvestment initiated by government policies was not much of success because assets of PSUs were undervalued and sold to the private sector. जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ था अपने PSUs में, ठीक है, और जब वो बेचने गए प्राइवेट सेक्टर को, जितना उनको उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए थी, प्राइवेट सेक्टर ने उसको इतनी वैल्यू नहीं दी. तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त लॉसेज हुए क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उन PSUs में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, राइट. और अगर आपको उस हिसाब से उसकी एयर इंडिया में क्या हो रहा है, अभी जो एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट जो अभी होना है, उनको अभी तक अपना एक सूटेबल बायर नहीं मिला है. वो जो रेट चाहते हैं उसके लिए वो मिल नहीं रहा है, राइट. और ऑलरेडी गवर्नमेंट एयर इंडिया में कितना पैसा लगा चुकी है ना. तो एक तो ये बात हो जाती है. दूसरी बात ये होती है कि जस्ट इन केस उस टाइम पे अगर उनको कुछ पैसे मिले भी थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, वो बेसिकली अपने लोन्स को रिकवर करने के लिए जाते गए जो हमने पहले लिए हुए थे, ना कि हमने डेवलपमेंट के लिए लगाए, ना कि हमने कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उससे, ऑलराइट. तो वो जो हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया भी, तो उससे जो आया हमारा रेवेन्यू, हमने डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने की बजाय अपने लोन्स को मोस्टली कवर किया. द नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन. ऑब्वियसली अगर बिग MNCs हमारी कंट्री में आ रही हैं और ट्रेड कर रही हैं और ऊपर से इतना चीप प्रोडक्ट्स जो क्वालिटी में भी हाई हैं और प्राइस में भी कम है, तो हम ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे. तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हैं या छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हुई थी. देन इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज, दिस वी हैव डिस्कस्ड इन ग्लोबलाइजेशन पार्ट ऑल्सो. दैट एंड ऑल्सो देयर वाज वन मोर थिंग, दैट एक तो ये था कि ग्लोबलाइजेशन जो अभी हमने डिस्कस किया कि डेवलप मार्केट्स जो थे, अपनी जो डेवलप कंट्रीज़ थी, वो अपनी मार्केट्स एक्सपैंड करती थी मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है. तो वो डेवलप्ड होते रहे और डेवलपिंग कंट्रीज़ और
पुअर होते गए, तो वो जो गैप था वो बढ़ता गया. एंड ऑल्सो पीपल हु वर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, उनका भी जो इनकम था वो धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो कुछ काम ही नहीं किया था, राइट. सो देयर इज वन एक्रोनिम टू रिमेंबर द डीमेरिट्स, दैट इज जय सिड, राइट. जय हो सिड की, राइट. वेकअप सिड एक मूवी थी, जय हो सिड की. सो जय सिड. सो जे स्टैंड्स फॉर जॉबलेस ग्रोथ, ए स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को ध्यान नहीं दिया. आई स्टैंड्स फॉर इनक्वालिटीज़, इनक्वालिटीज़ बढ़ने लग गई. एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे. आई स्टैंड्स फॉर लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. वाई? बिकॉज चीप प्रोडक्ट्स स्टार्टेड कमिंग इन, right, and there was no proper infrastructure in industrial sector. D stands for disinvestment. जो proceeds आए वो हमने डेवलपमेंट के लिए नहीं, बट इन फैक्ट हम अपने लोन्स को कवर करने के लिए लगा रहे थे, राइट. और जो पैसा मिल भी रहा था वो उतना नहीं था जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अंडर वैल्यू हो गए. प्राइवेट सेक्टर ने इतना पैसा ही नहीं दिया जब वो खरीद रहे थे PSUs पब्लिक सेक्टर से, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू सो मच.